Dear students, very good morning. Today in this video, we are going to discuss about the questions and answers of chapter 1 equality, and these questions and answers are short questions and answers which is asked in 2 marks or 3 marks in your question paper. So the first question is, mention the positive effects of midday meal scheme in one point. And the solution is, their attendance has improved. Their mothers, who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day, now no longer need to do so. The next question is, why universal adult franchise is important in a democracy? And the solution is, universal adult franchise is a very important aspect of democratic societies because it gives all adult those who are 18 years and above citizen the right to vote irrespective of their social and economic background. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सभी को, जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है, उन सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है, बगैर ये देखे हुए कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है. The next question is, what is the civil right movement? Civil right movement क्या है? It is the movement that began in 1950s in which the African Americans demanded equal rights and end to racial discrimination. अमेरिका में जो रेस के आधार पर, जो उनके कलर के आधार पर जो अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनके साथ जो भेदभाव होता था, उस भेदभाव को ख़त्म करके इक्वल राइट्स की डिमांड करनी जो है अफ्रीकन अमेरिकन्स ने शुरू की 1950 से. उसी को सिविल राइट मूवमेंट कहा जाता है, जिसमें रोजा पार्क्स के बारे में भी आपने देखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया? भारत में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसका सबसे कॉमन फॉर्म क्या है, हम ये देखेंगे. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम एंड रिलीजन. यानी भारत में जो असमानता का सबसे इजी जो एग्जाम्पल है, जो सबसे बेसिक जो है, जिस आधार पर असमानता पाई जाती है, वो कास्ट सिस्टम, जाति सिस्टम और धर्म है. अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मिड डे मील प्रोग्राम? मिड डे मील प्रोग्राम क्या है? Solution is, this refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. ये मिड डे मील जो प्रोग्राम है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो सभी सरकार के जो प्राथमिक और माध्यमिक जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों को पका हुआ भोजन, दोपहर का भोजन जो है वो दिया जाता है. The next question is, define the following terms: the term dignity and the term constitution. The solution is, the term dignity, it refers to thinking of oneself and other persons as worthy of respect. यानी दूसरों की गरिमा का ख्याल रखना डिग्निटी कहलाता है, दूसरों की गरिमा के बारे में भी ध्यान रखना. Constitution, Constitution is a document that lays down the basic rules and regulations for people and the government in the country to follow. कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या है? एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो देश के नागरिकों और देश की सरकारों को चलाने के लिए, उनके एक्ट के लिए जो है उनको बताता है कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं. The next question is, which feature of the Constitution of India relates to right to vote for people above 18 years? Explain why is this important. भारत के संविधान का कौन सा ऐसा फीचर है जो व्यक्ति को 18 साल से ऊपर के लोगों को वोट देने के से संबंधित है, और ये क्यों महत्वपूर्ण है?
इसका उत्तर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंस। The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he or she belongs to, has one vote। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज जो है उसके आधार पर सभी को एक वोट देने का अधिकार है अगर वो 18 वर्ष से ऊपर है। उसमें उसकी जाति, कास्ट, उसका धर्म, उसके आर्थिक स्थिति को नहीं देखा जाता है और इसलिए ये जो है देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जनतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोजा पार्क्स, an African American woman, faced inequality while traveling from office to home. She raised her voice against it, and this small step led to a big movement known, known as civil rights movement. In the light of this case, highlight any two results of this movement। रोजा पार्क्स ने जो है जब वह घर से ऑफिस से घर लौटते समय बस में एक गोरे व्यक्ति को अपनी सीट देने के लिए मना कर दिया। उनका ये छोटा सा स्टेप बहुत आगे चलकर बहुत बड़े मूवमेंट का, एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया जिसको सिविल राइट मूवमेंट कहते हैं। इसके इसके दो जो है जो फाइंडिंग्स हैं वो एक है कि जो इसका रिजल्ट है सिविल राइट मूवमेंट जो है वो एक एक्ट पास किया गया जिसको सिविल राइट एक्ट नाम दिया गया। पासिंग ऑफ सिविल राइट एक्ट इन 1964 एंड ओपनिंग ऑल स्कूल्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन। जो अफ्रीकन अमेरिकन थे यानी जो काले अमेरिकन थे उनके लिए पहले अलग स्कूल्स होते थे, उनके बच्चे अलग स्कूल्स में पढ़ते थे, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया। सभी प्रकार के स्कूल्स में उन बच्चों को एडमिशन दिया जाने लगा। थैंक यू।